refineries in Pakistan. At present, 4 oil refineries are in operation in our country. One oil refinery known as Attak Oil Refinery is located at Murga near Rawalpindi. It has about 1.25 million tons oil refining capacity, and two oil refineries have been established at Karachi, which have about 2.13 million tons of oil refining capacity. Fourth refinery, known as Pak Arab Refinery, is located at Mahmud Kot near Multan. So in these refineries, petroleum is refined, means the components or fractions of petroleum are separated from one another. So these are fractions or components of petroleum according to our Sindh textbook. So here these are the here are the fractions. For example, the fractions containing carbon C1 to C4, which are also called natural gas and bottled gas, and their usage is as a petrochemicals. Petrochemicals are those which are prepared from these natural gases, for example, plastic, etc. So below 20 degrees centigrade, we obtain this fraction C1 to C4, natural gas or bottled gas. Again, the temperature is increased 20 to 60 degrees centigrade, C5 to C6, pentane, hexane, which are called petroleum ether. It is used as a solvent. And again, the temperature is increased 60 to 120 degrees centigrade. At 120 degrees centigrade, the fractions vaporize and condense is hexane and heptane. It is also called lignoline or naphtha. It is also used as a solvent for dry cleaning. Dry cleaning petroleum and lignoline are used as a solvent. The major component, that is the gasoline, its boiling range is up to 200 degrees centigrade, C5 to C10, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. This gasoline is also called petrol. And again, temperature is increased from 175 to 325 degrees centigrade. We obtain C12 to C18 carbon atoms, which is called kerosene oil. It is used as a jet fuel, and it is also used for lighting purposes in the lamps. So their boiling range is up to 325 degrees centigrade, and the temperature is again increased up to 400 degrees centigrade, and then we obtain the vapors of gas oil, which is used as a fuel oil. It is named diesel oil. Diesel oil is used in a diesel engine. जो गाड़ियों की इंजन्स होती है मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, जो पेट्रोल पर चलती हैं वो अलग होती हैं, जो डीजल ऑयल पर चलते हैं उनको अलग करते हैं, अलग होती हैं. तो ये जो डीजल ऑयल है हमें मिलेगा किस टेम्परेचर पर, 250 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. और बाकी उस पेट्रोलियम में बाकी जो फ्रैक्शन रह जाते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और ये तकरीबन विस्कस लिक्विड होते हैं या सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल है और ग्रीस है. और उसके अलावा पैराफिन वैक्स उसमें मिलती है, एसफाल्ट या टार हमें उस पेट्रोलियम में मिलता है. तो ये वो फ्रैक्शंस है पेट्रोलियम के जो हमने उनको अपने अपने बॉइलिंग रेंज पर वेपोराइज करके फिर कंडेंस करके उस रिफाइनरी में अलग किया है. अब इनको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, हर एक फ्रैक्शन को दूसरे नाम है. जैसे ये हमारे पास है रिफाइनरी गैस. रिफाइनरी गैस इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. मीथेन में 1 कार्बन होता है, ईथेन में 2 कार्बन और प्रोपेन में 3 कार्बन और ब्यूटेन में 4, और चारों जो हैं वो गैसेस हैं. और ये रिफाइनिंग से अलग किया जाता है तो हम इनको रिफाइनरी गैस कहते हैं.
इनका बॉइलिंग रेंज जो होता है, ये रेंज है RAN जी। तो इसका जो बॉइलिंग रेंज है वो जो है वो कितना बॉइलिंग रेंज है, ये बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमें मिलता है। तो बॉइलिंग रेंज ऑफ द रिफाइनरी गैस इज बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही वो उस फर्नेस से फ्रैक्शनैलिटी कॉलम में आएगा तो बिल्कुल जल्दी में ऊपर चले जाते हैं ये, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम ही होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूअल, इनको हम फ्यूअल के तौर पर यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर डोमेस्टिक फ्यूअल के तौर पर यूज़ करते हैं। मीथेन को हम CNG के फॉर्म में गाड़ियों में यूज़ करते हैं, और प्रोपेन ब्यूटेन हम इनको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG कहते हैं, और इनको सिलेंडर वगैरह में बंद किया जाता है तो हम इनको बॉटल्ड गैस कहते हैं। और ये पेट्रोकेमिकल्स में इनको यूज़ किया जाता है, यानी कि प्लास्टिक वगैरह भी इनसे हम बना सकते हैं। और दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज अ पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर इट इज a mixture of hydrocarbon which contain C5 to C6 carbon atoms. Its boiling range is 20 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो बॉइलिंग रेंज कितना है 20 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं पेंटेन और हेक्सेन। इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड इन ड्राई क्लीनिंग में हम इनको यूज़ करते हैं। और उसके बाद है लिग्राइन is a mixture of hydrocarbon which contains C6C7 carbon atoms, hexane and heptane. It is also liquid form. Its boiling range is 60 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम बॉइलिंग रेंज कहते हैं तो इसका मतलब है तो इस टेम्परेचर पर वो वेपोराइज होते हैं, फिर उसको टेम्परेचर कम करेंगे तो अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, लिग्राइन। Gasoline or petrol, it is a mixture of hydrocarbon which contains C5 to C10 carbon atoms. Its boiling range is 40 to 200 degree centigrade or 70 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ यूज्ड एज अ मोटर फ्यूअल। जो इंजन होती है कार बाइक वगैरह की, उनमें एज फ्यूअल के तौर पर हम इनको यूज़ करते हैं। केरोसिन ऑयल एंड जेट फ्यूअल। Kerosene and jet fuel, it is a mixture of hydrocarbon which contain C11 to C12 carbon atoms. Its boiling range is 175 to 325 degree centigrade. ये according to सिंध टेक्स्ट बुक के मुताबिक है। It is used as a lightning fuel. It is also cracked to get the petrol. हम इससे पेट्रोल बनाते हैं क्रैकिंग प्रोसेस से। केरोसिन originated straight run petroleum fraction that boiled between approximately 205 and 260। यानी कि ये जो केरोसिन के किस्म होते हैं, एक वो है जिसका बॉइलिंग रेंज 205 और 260 के दरमियान में होता है। गैस ऑयल, फ्यूल ऑयल और डीजल ऑयल। गैस ऑयल, फ्यूल ऑयल और डीजल ऑयल कहलाता है। गैस फ्यूल को इसको बोलते हैं, फ्यूल के तौर पर यूज होता है। It is a mixture of hydrocarbon which contains C12 to C18 carbon atom. Its boiling range is 250 to 400 degree centigrade. It is used as a fuel for diesel engine. Lubricating oil जिसे मोबिल ऑयल वगैरह कहते हैं, it contains C16 to C20 carbon atoms. Its boiling range is above 350 degree centigrade. It is used as a lubricants. गाड़ी के इंजन में जो पार्ट्स में फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए इसको हम लुब्रिकेटिंग के तौर पर यूज़ करते हैं। और ग्रीस या वाइजलिन ETC, इट कंटेन्स C18 to C22 कार्बन एटम्स। Its boiling range is above 400 degree centigrade. It is used in pharmaceutical preparations. और पैराफिन वैक्स contains C20 to C30. Its melting point is 52 डिग्री सेंटीग्रेड टू 57 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि ये साल्ट फॉर्म में होता है तो साल्ट मेल्ट ही होता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कैंडल्स, वैक्स पेपर्स, ETC। बहुत सारे यूज़ होते हैं पैराफिन वैक्स के। पैराफिन ऑयल एक किस्म मिलता है, पैराफिन ऑयल और लिक्विड पैराफिन ऑयल इज obtained in the process of petroleum distillation.